War memorials holds a significant importance in remembering to honor the sacrifices made by the veterans. So today, here in Miram Batum, people from all across Upper Siang have gathered to witness the inaugural ceremony of Miram Batum Lingkam War Memorial. In a tribute to honor the courage and valor of veterans who sacrificed their life for the people and serve as a reminder of peace in the society. Greetings Arunachal, you're watching Eastern Post, and today we will take you to the update of this inaugural ceremony and highlights of the memorial design with the behind stories. And while this coverage, we will also interact with Deputy Chief Minister Chawna Mehi himself. So stay tuned with Eastern Post. Chief guest of today's program, Honorable Deputy Chief Minister of Arunachal Pradesh, Chawna ji. It's a great privilege and honor to welcome you in this historic occasion. Sir, हमें ये बताते हुए बहुत खुशी है कि आपने जो एक आइडिया एंड इंस्पिरेशन हमारे अनसंग हीरोज प्रोग्राम के तहत जो प्रदेश में स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में जो इंस्पायर किया है, वो आइडिया जो राज्य के इस कोने तक भी फैल गया है सर। तो उसी के बदौलत हमने 131 आफ्टर 131 इयर्स अपने एंसेस्टर्स लोग का याद में वो लोग का रिगार्ड्स में एक चौपाटी से ही एक मेमोरियल आफ्टर 131 इयर्स हमने बनाया है। थैंक यू सर उसके लिए आपको। गेस्ट ऑफ ऑनर एंड ऑनरेबल मिनिस्टर Rural Development, Panchayat, Corporation and Transport, Nababil bin Wazir Pasing. It's an honor to welcome you, sir. I welcome Moduk Adi Tata Kanunkan, Yai Tadung Nilban, President Adi Balakevan, Bin Vijay Taran, General Secretary Adi Balakevan, Honorable Evane Bodhi Maya Jeku, and host of today's program, Bin Oli Maya ji, Honorable Evane 47 Kambu, and host Yi Punya Apunji,
respected advisor to Honorable DCM and my elder brother Bun Abu Tangaji Alambao Tangaji, respected Deputy Commissioner Pai Talajaranji, SP sir, ADC Marian, Bun Narbon Boran. The Miram Batum War Memorial stand as a testimony and a tribute to the braveness, courage, and the warfare tactics of the Adivasis during the Third Anglo-Boer War of 1894. This memorial that we have just inaugurated by the Honorable Chief Minister stands as to preserving the history of the Adivasi villagers that successfully repelled the advancing British forces by adapting strategic tactics like boulder barricades and guerrilla warfare. The event of the Miram Batum 131 years ago that has given a major fleet and has made a significant contribution for resisting the colonial forces. And we have just seen that 4 statues have been erected here representing the 4 clans of the Adivasis group that honors their bravery and sacrifices. Silok longaso history Miram Batum ke mima malokon no milunam mimak war inam doing takamam ngoke ane tobom dai kain bito dolung keding nolu bulu konnopak budget session in kai nolu youth keding katupe centope under the leadership of Ngoluk ke maninam Pema Kandu, Honorable Chief Minister ke leadership lo, ngoluk ke maninam Deputy Chief Minister ke, ara lok sining ke budget base nam budget inam the number 1, dan ngoluk ken panama. Dalam orangam dolung keding, ngoluk ke Honorable Deputy CM Sir, hining ke konno ke budget base nam the India hok record. Nolubulu lebih nama 11. Ini kolang atel na budget yang berpes bodong hingok ke ngoluk to deputy CM sir. Record medium atel देमिना. कैसे हमारा फोरफादर्स लोग ग्रैंडफादर्स लोग ब्रिटिश कांग्रेस के साथ में लड़ाई किए हैं। ये जितना भी आज आपने उद्घाटन किए हैं, ये जितना भी फांसी समाज के बुजुर्ग है, वेल विशर्स है, इन लोगों ने अपना ओन कंट्रीब्यूशन खून पसीने से इसको कंट्रीब्यूशन देके बनाए हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ ओकिडाई। और मैं चाहता हूं उन्हीं और हम दोनों चाह रहा था कि आप अगर आता है तो इनके इससे मैंने आज के उद्घाटन में से बड़ी मैंने एक पहचान होगा। तो मैं आपको गुजारिश करना चाहूँगा और अनुरोध करना चाहूँगा हमारा पासी कम्युनिटी की ओर से कि इन्हें भी सरकारी दर्जा दिया जाए जब भी आपका नेक्स्ट ये में हो, या कैसे आप करना ये आप मालूम है। हमारा गुजारिश ये है कि ये भी आपके स्टेट की भारत सरकार की राज्य की एक रिकॉग्निशन ये में आने से ठीक है। Dolung kedar ngolu ko yenamem adi ye melakon na milunam pamun hito tayar dung inama abu lagi la history lo ko banjong ko polito dal ko him ati hilo ke him miram batu mem war him ngolu tanmato abut por war ko to tadung itola him laga tanmato irokom ngoluga नरेंद्र मोदी निगम के आजादी की अमृत महोत्सव एंड डिक्लेयर ला अरुणाचल हलो पेमा का निगम लाग हुआ के ngolu ke mengke lena DCM sar bagi declare abu me ngolu ke
Unsung Heroes log committee log chairman ila. Iborongam hum ati ku dingol kom anyaw no talang kul hilo kendung ku dag laga ela ko kudang the same sir me thank you so much. कहा है कि मॉडर्न लो लेकिन विद एडहेरेंस टू दी ट्रेडिशन को खोना नहीं है हमको। तो इस तरह का हमारा जो कल्चर रीति रिवाज को जीवित रखना है, वो चीज़ हमने बोलेंग में देख के आया। बोलेंग में अभी भी टापू डांस, पासीघाट में गया तो टापू डांस पासीघाट में नहीं है, वो बोलेंग से सियांग से लेके आया पासीघाट में। तो अभी क्या होगा, अभी सब जगह में पासीघाट में भी टापू डांस होना है, अपर सियांग में भी होना है, सियांग में भी, हर आदि गांव में आदि इलाका में टापू डांस होना है। कल्चर खोना नहीं है। मैं मेंबा एरिया में क्या, मैं मेचुका में क्या, मेचुका का नेनांग सोसाइटी, वो भी आपका आदिवासी कबंग जैसा है। उन लोगों ने कहा कि हमारा संस्कृति को नहीं खोने के लिए, ताकि आज का जमाना में बच्चों लोग भूल नहीं जाने के लिए, हर बुधवार को हम स्टेज पे जाके अपना जो फोक कल्चर है, फोक कल्चर गीत मात गाते हैं और डांस भी करते हैं, ताकि यंग लड़का को ये भूलना नहीं चाहिए। ये जो लीगेसी है, ये जो परंपरा है, आने वाले समय तक ये जीवित रहे। तो सर जैसा कि आपका 3 दिनों से यात्रा चल रहा है ना, तो हम जानना चाहेंगे कि आप एक्सपीरियंस कैसा रहा एंड देन अपकमिंग एजेंडा क्या रहेगा उसके बाद में। मैं पिछले 3 दिन से मैं आदि एरिया का दौरान कर रहा हूँ। इसलिए दौरान कर रहा हूँ कि अभी उनिंग आरान फेस्टिवल चल रहा है, आदि समाज का उनिंग फेस्टिवल चल रहा है। तो पहले तो मैं पासीघाट में 17 मार्च को उनिंग आरान फेस्टिवल में मैं शामिल हुआ है। वहाँ लोगों का साथ में उनिंग आरान फेस्टिवल मनाया उन लोगों ने, और एक उद्देश्यपूर्ण एक ऑब्जेक्टिव लेके हमने उनिंग आरान मनाया है। फिर बाद में हमने बोलेंग में गया। बोलेंग में हमारा जो कल्चर है, आदि समाज का जो ट्रेडिशनल कल्चर है, जो फोक कल्चर है, और उनिंग आरान का विषय में हम लोग अच्छा से चर्चा किया। फोक कल्चर को भी देखने को मिला। शाम को जो रेयर जो आजकल जो एक्सटिंग होने वाला है, उस तरह का जो कल्चरल डिस्प्ले हमको देखने को मिला है। बहुत अच्छा मुझे सीखने को मिला है, जानकारी भी मिला है। तो ये सब चीज़ों का हमारा जो कल्चर है, हमारा जो संस्कृति है, हमारा जो फोक जो कल्चर है, उसको डॉक्यूमेंटेशन का भी बहुत दरकार है अभी, नहीं तो खो जाएगा। तो इस प्रकार का हमारा आयोजन होगा। फिर वहाँ से आके आज का दिन में मैं इस इलाका में पहुँच गया है। ये जो एंग्लो आबर वार, चार वार आदि लोगों ने, आबर लोगों ने ब्रिटिश का साथ लड़ाई किया है। ये एक है 1894, जो आदिवासी इलाका में ब्रिटिश को उन लोगों ने मार गिराया। ऊपर में उस पहाड़ का ऊपर में ये पत्थर इकट्ठा करके उन्होंने ब्रिटिश को मार गिराया। उस पार में भी उनका जो समाज के जो लोग बैठा हुआ था कि अगर ब्रिटिश लोग आएगा, हम लोग दोनों मिलके हम लोग उनको उस पर वार करेगा। लेकिन यहीं से ब्रिटिश को भाग गिराया। तो वो वार मेमोरियल हमारे लिए बहुत गौरव का बात है। तो उनको ट्रिब्यूट देने के लिए, वो जो वार हीरोज़ है, जिन्होंने अपना जीवन आहुति दिया हमारा लिए, जो सेक्रीफाइस किया है, जो अनसंग हीरो है, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए मैं आया हूँ। और जो मेमोरियल जो बनाया है यहाँ में, वार मेमोरियल जो बनाया है यहाँ का जो समाज ने, उनको मैं इनॉग्रेट करने के लिए आया हूँ। इनॉग्रेट का साथ साथ उनको ट्रिब्यूट भी देने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए आया हूँ। आज हमारे लिए बहुत हिस्टोरिक ओकेजन है, बहुत एक मेमोरेबल ओकेजन है। मैं यहाँ का जो समाज है, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। यहाँ का एमएलए है ओनी पानियांग जी, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरे साथ हमारा मंत्री ओजिंग तासिंग जी भी आए हुए हैं, पुण्य अपुम जी भी आए हुए हैं, और तमाम जो हमारा एबीके का लीडरशिप है, आदि समाज का जितना भी सीबीओज है, महिला समाज का जितना भी लीडर्स है, सब लोग इकट्ठा हुए हैं कि ये वार हीरोज़ को
ट्रिब्यूट देने के लिए, सम्मान देने के लिए हमारे लिए बहुत गौरव का बात है ये। और जैसा कि सर ये इनिशिएटिव टूरिस्ट लोग को भी बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं ना, ये वार मेमोरियल पर सुनने में आया है कि ये सेल्फ फंडेड इनिशिएटिव है, तो गवर्नमेंट के तरफ से इस पे क्या? देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से हमारा जितना भी वार मेमोरियल है अरुणाचल प्रदेश में तकरीबन 12-13 वार मेमोरियल होगा, और वार मेमोरियल के लिए हम धनराशि ऑलरेडी दे दिया है। हर इलाका में जो डेजिग्नेटेड एरिया में वार मेमोरियल होगा, हम उनके लिए मदद करेंगे। मैंने आदि समाज को मैंने ये भी ये सजेशन दिया हूँ कि उनका जो 4 जो इलाका में जो वार हुआ है, उसको वार को एक वार ये जो वार टूरिज्म उसको कनेक्ट करने के लिए एक जगह को सभी जगह को कनेक्ट करने के लिए सुंदर से बनाने के लिए उनको मैं बोला हूँ। उनके लिए सरकार का तरफ से जो भी मदद होगा हम लोग जरूर करेंगे। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा ओकेजन है, बिकॉज दे आर आवर हीरोज, दे आर आवर अनसंग हीरोज। फॉर देम वी आर हियर टुडे। So for this memorial, we should, if we would not do, who will do? So ये जो लिगेसी है, ये लिगेसी कंटिन्यू होकर जाएगा जब। सर आपने ऐसा भी मेंशन किया था मल्टीपर्पज़ डैम के कंपनसेशन को लेके कि किसी को ज़्यादा मिल सकता है एंड किसी को कम भी मिल सकता है कंपनसेशन। तो इसके ऊपर हम ये जानना चाहेंगे कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास लैंड नहीं है, प्रॉपर्टीज़ नहीं है, लेकिन भी उन लोग भी वहाँ मतलब स्टे करते हैं, तो उनके लिए हमारा जो रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन पैकेज है, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन पैकेज में जो भी हमारा प्रावधान है सबको मिलेगा, कोई किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, सबके लिए होगा। ये सुविधा है, जो भी सुविधा है, जो अफेक्टेड फैमिली है, सबको सुविधा मिलेगा। थैंक और यू। आखिर में सर एक लास्ट मैसेज पूरे कम्युनिटी के लिए ट्रेडिशन और फोल्क कल्चर को लेके। देखिए, हमें क्या है, मैंने हमेशा कहा है कि मॉडर्निटी आया है, ग्लोबलाइजेशन आया है। यू कैनॉट जस्ट लिव एवरीथिंग, यू हैव टू एक्सेप्ट ग्लोबलाइजेशन, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू प्रिजर्व योर ओन कल्चर, ओन ट्रेडिशन ऑल्सो। दैट इज वाई एक्सेप्टेंस ऑफ मॉडर्निटी विद एडहेरेंस टू कल्चर। हमारा कल्चर को जीवित रखना होगा। कल्चर को जीवित रखने के लिए ही हमने गुरुकुल स्कूल अभी खोला है। हमारा जितना भी पुराना संस्कृति हो उनको फिर प्रिजर्व करने के लिए सरकार का कार्रवाई है। जो हमारा इंडिजिनियस जो कल्चर है, इंडिजिनियस अफेयर्स मिनिस्ट्री भी हम लोग का डिपार्टमेंट भी खोला है। इस तरह का हमारा जो रीति रिवाज है, जो ट्रेडिशन है, उसको प्रिजर्व करने के लिए सरकार पूरा प्रतिबद्ध है। Thank you very much. Ngoluk hi ngkodung in fact adipasi dolung ko kadung adipasi dolung te loge lenne normally abu api loge lenna kotire kiwo abu ko kadung kiwo delo regon dai darin tadu kiomso delo rongem no anbo moyong erang kedare delo rongem nupum numi apum numi deka kedie delo rongem domung doruk hoge lenpan huna kotir inkola ngolu ke 1894 delo ngolu ancestors ke dia advancing British troop में होलोग indigenous warfare method लोग like लिंकांग दे लोग इनको arrows and bows yoksas देखे किधर लोग माने बोलूग cannons and guns em ngolu ikumla bolum retreat dokupeito iname that was on 1894 iname silo imulo almost 31 years koidung iname ngolu hoge abu api hoge onam kedie pasigan lo dune kom kadung namsai lo dune kom kadung rowing dambuk lo dune kom kadung taka memeli dola anyong asak taka me contribution ibo dola ngolu him in respect and honor of our ancestor ngolu him war memorial him pibila ipala puin pala hilo ngolu ge state hoge unsung heroes program initiate ibona ngolu takam ke fatherly figure honorable DCM deputy chief minister of Arunachal Pradesh chonamen sar me inaugurate ibi dapatom to dalog rongam ngoluge adi loge minister bring ojing tasing me guest of honor pe dalog ngoluge local MLA bitu hostwe dalog rongam ngoluk 42nd Dambuk Assembly constituency loge MLA ngok akhe i punyo apum kom ato dalog ngoluge
Adi bana ke bang log president secretary takam frontal wings log ke ko mila the log rong ngolu ga oga entire mopom circle hok public ke darla ngolu him hilo successfully program him mila inauguration program into सर जैसे कि आपने मतलब जैसे कि हमें सुनने में आया है कि ये सेल्फ फंडेड इनिशिएटिव था ना, तो गवर्नमेंट को इसके ऊपर थोड़ा कुछ अपील करना चाहेंगे आप? नहीं, ये इनफैक्ट हम लोग बाकी सोसाइटीज़ एंड कम्युनिटीज़ के लिए भी एक एग्जांपल सेट करना चाहता था कि हमारा अरुणाचल में लगभग 26 मेजर ट्राइब्स है। सबका साथ स्पेशली हम लोग का ईस्टर्न बेल्ट का ब्रिटिश का साथ छोटा मोटा स्कीम्स बहुत सारा हुआ है, तो सबको अगर गवर्नमेंट फंडिंग करना शुरू करेगा तो फिर मुश्किल हो जाता है गवर्नमेंट के लिए भी। इसलिए हम लोग इसको कम्युनिटी जितना ये है इन्वॉल्व है उससे 1-2 रुपया करके भी क्राउड फंडिंग करके ऐसा करके हम लोग बना के एक दिखाया है। तो ये मॉडल को हम लोग बाकी लोग भी रेप्लिकेट करें, हमारा यही इच्छा है। हैविंग सेड दैट अगर गवर्नमेंट का पास सफिशिएंट फंड है तो ये जगह भी आप लोग देखे हैं, चारों तरफ पहाड़ भी है, सीरीन भी है, तो इट कैन बी डेवलप फ्यूचर में आप एक टूरिस्ट प्लेस जैसा भी डेवलप कर सकता है। तो यहाँ में एक्चुअल वार हुआ है, तो आपका इन फ्यूचर अगर ये होगा तो आपका जो ब्रिटिश का जो पोस्ट में थे उस समय में आर्मी में थे, उनका अभी का ऑफस्प्रिंग लोग भी अगर कहानी को हिस्ट्री को वो लोग जानने वाला लोग बाद में वो लोग भी आके देख सकता है। तो वो एंगल में गवर्नमेंट हम लोग को बहुत मदद कर सकता है। ये मिरम बातुम वार का रिगार्डिंग पब्लिसिटी एंड देन एडिशनल जो एमिनिटीज़ है उसको फंडिंग करने में गवर्नमेंट हम लोग को मदद कर सकता है। और हम लोग फ्यूचर में गवर्नमेंट का साथ डिस्कस करेंगे कि वो लोग किस लेवल तक हम लोग को हेल्प कर सकता है। फिलहाल तो हम लोग कोई अपील नहीं कर रहा है गवर्नमेंट को कि ये कर दीजिए वो कर दीजिए करके। Viewers, that's all for today's report. Till then, for more such updates, keep watching Eastern Post. I'm reporter Niraba with camera person Gaman Noka reporting from Eastern Post.